میم اب اسکرین شیئر کریں گے ابھی تو پھر ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آج کل جو سوسائٹی میں اسپیشلی پاکستان کی سوسائٹی میں یہ بہت کامن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ صرف سائیکالوجی کے بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سائیکالوجی کے بچوں سے زیادہ وہ بچے جو کہ مطلب آؤٹ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے سائیکالوجی کے, وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ کوئی ایسے بچے جو کہ ایف ایس سی کے اسٹوڈینٹس ہیں یا کوئی اپلائی کر رہے ہیں کسی جاب میں یا کسی بزنس سیٹنگ میں, کسی ہاسپٹل میں یا کہیں پہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو اینگر ہوتا ہے نا, یہ آپ کا نیچر ہے, آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ ہے. تو اسی لیے یہ ہر حال میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کس لیول پہ لائے کرتے ہیں اور اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. صحیح ہے, اوکے چلیں اب میں سٹارٹ کر دیتی ہوں جب تک آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر ہو جائے گی. اور میں آپ کو اینگر کے بارے میں راؤنڈ اباؤٹ 35 to 40 منٹ تک بتاؤں گی. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے وہ کوشچن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں. اور اب سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اینگر پہ. بیسیکلی اینگر ہے کیا, جسے ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں غصہ, جو کہ کچھ لوگوں کو کم آتا ہے, کچھ لوگوں کو زیادہ آتا ہے, کچھ لوگوں کو کبھی کبھی آتا ہے اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ہر روز آتا ہے, ہر وقت آتا ہے. تو جو ہماری سائیکالوجی بتاتی ہے, جو ہماری ریسرچ بتاتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اینگر جو ہے نا, اینگر وہ بیسیکلی ایک ایموشن ہے, احساس ہے. جیسے ہم ہنستے ہیں, روتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہ جو غصہ ہے نا, یہ بھی ہمارے ایموشنز کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے, کھانا پینا ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے, لیکن ہنسنا, رونا یہ ہمارے ایموشنز ہیں, احساسات. ٹھیک ہے, اور اینگر جو ہے وہ بیسیکلی ارائز ہوتا ہے یا ہمیں غصہ آتا ہے کس سے, موسٹلی ٹینشن سے. جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں, کسی سٹریس میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا مایوسی میں, ٹھیک ہے, یا پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تب ہمیں غصہ آتا ہے. یہ ایک نیچرل باتیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انجری ہو جائے. اب انجری کی بھی یہاں پہ دو پارٹس ہیں. پہلے آپ اس سے شیئر کرتے ہو اپنی فیلنگ کہ بھائی معاملہ یہ ہے, آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, تو یہ بات ہے, اصل بات یہ ہے, اور اس کو ہم اس طرح سے ریزولو کر سکتے ہیں. بیسیکلی آپ کو اس وقت جو مین مقصد ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ کنفلکٹ ریزالو کریں. ٹھیک ہے, جو بھی پرابلم ہے, لڑائی جھگڑے کے بغیر اس کو ریزالو کریں ان اے ویری پازیٹیو, ان اے ویری ریسپیکٹیبل وے. ٹھیک ہے, آپ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرتے ہو, بٹ کانفیڈنٹلی آپ اس سے اپنی فیلنگ کو شیئر کرتے ہو, چاہے وہ اگلا بندہ آپ کو جتنا بھی بدتمیزی کر رہا ہے, لیکن آپ اس حق میں ہوتے ہو کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. ٹھیک ہے, دوسری جو ٹائپس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اگریسو اینگر. اگریسو اینگر جو ہے نا, وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطرناک قسم کا اینگر ہوتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ اس میں وائلنٹ ہو جاتے ہیں, آپ اس میں مارنے پیٹنے پہ آ جاتے ہیں, آپ کسی کو نقصان پہنچانے میں آ جاتے ہیں. فوراً آپ جھگڑا ہو رہا ہے, آپ نے اس کو کوئی چھرا سے گھونپ دیا, اس کو آپ نے شوٹ کر دیا, یا اس کو آپ نے زور سے مار پیٹ دیا, اتنا مارا کہ ایون اس کا خون نکل گیا, اسے جان کا وبال بن گیا. یا آپ جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چیزیں توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں. صحیح ہے, یہ اگریسو وائلنٹ اینگر ہوتا ہے جس میں آپ اپنا یہ اسمائل کر کے چلا جاتا ہے. وہ کوئی گالیاں نہیں دیتا, کوئی مارتا پیٹتا نہیں ہے, کوئی ڈسٹرکٹیو بیہیویئر شو نہیں کرتا, بس چلا جاتا ہے وہاں سے. لیکن وہ اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھتا ہے کہ اس بندے نے نا میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی, اب میں اس سے جواب لوں گا, اس سے بدلہ لوں گا. ٹھیک ہے, اب وہ کیا کرتا ہے کہ کچھ عرصے بعد بھی صحیح وہ آپ سے ایک ریلیشن بلڈ کرتا ہے, جہاں پہ اسے موقع ملتا ہے کہ ہاں میں اب اس کو اس معاملے میں نقصان پہنچا سکتا ہوں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ یہ بیسیکلی یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, اس کا آپ کو فرینڈ بھی بنا سکتا ہے وہ, یا آپ کے ساتھ بہت اچھا بیہیویئر وہ کرنا سٹارٹ کر دے, جس سے کہ مطلب اتنا لویل ہو جائے کہ آپ کو اس پر کوئی شک کرنے کی گنجائش ہی نہ بچے. ٹھیک ہے, بیسیکلی وہ منافقت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈبل فیس ہوتا ہے وہ بندہ اس وقت. تو وہ آپ کو یقین حاصل کرتا ہے, آپ کو اس سچویشن میں لے جاتا ہے جس میں اس نے آپ کو
फंसाना होता है, ठीक है, जिसमें उसने आपसे बदला लेना होता है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है कि जब आपका वो सब आपको यकीन में भी ले लिया, उस सिचुएशन में भी उसने आपको ऐसे समझे फंसा लिया, ठीक है, उसके बाद वो आपसे बदला लेता है और कुछ इस तरह से आपको नुकसान पहुंचाता है कि जिसका शायद मुश्किल ही से सबूत हो। तो ये जो चीज होती है पैसिव एंगर, ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। इसमें ना वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है जिससे उसने बदला लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा डेंजरस लेवल का होता है। उसके बाद आती है क्रोनिक एंगर। अच्छा, ये क्रोनिक एंगर ये होते हैं जो लंबे अरसे तक चलते हैं। मतलब एक बंदा ऐसा है, कुछ लोग होते हैं जो ना मतलब झगड़ा हो जाती है, गुस्सा एक दूसरे से हो जाता है, तो वो थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये भूलते नहीं है। ये ना मतलब ऐसे होता है कि कोई लंबे अरसे के लिए ये अपने दिमाग में रखते हैं कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। और ये वो लोग होते हैं जिनको उस वक्त जो आपको मारें पीटें या जवाब दें, जो भी करें, लेकिन बार बार जब भी उनको मौका मिलेगा ना, वो छोड़ेंगे नहीं, वो दोबारा झगड़ा करेंगे। तुमने उस दिन भी मेरे साथ बदतमीजी की थी और अब फिर मैं तुमसे पूछता हूँ। मतलब ये वो लोग होते हैं जो जिनकी ईगो ना जरूरत से ज्यादा होती है और वो सबक सिखाना चाहते होते हैं कि भाई इसने आज मेरे आगे सर उठाने की या नजर मिलाने की कोशिश की है, आगे कभी ना करे, ठीक है। तो इसलिए ये बार बार आप पे डोमिनेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल गलती से ही सही आपने एक बार बदतमीजी कर ली तो उसका ये बार बार बदला लेंगे, ठीक है। ये लंबे अरसे तक जो है ना अपने अंदर ये गुस्सा संभाल के रखते हैं। इनका गुस्सा ठंडा नहीं होता, बड़ी मुश्किलों से होता है, ठीक है। इसके बाद होती है राइटियस एंगर। अच्छा, ये जो राइटियस एंगर होता है ये बेसिकली इसलिए होता है जब आप किसी नाइंसाफी को देखते हैं। जब आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही होती है तो आपको गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है। तो क्योंकि गुस्सा आ रहा होता है तो उस वक्त आपसे चुप नहीं रहा जाता, आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। आप या तो उस वक्त दो इसके टाइप्स होती हैं, या तो आप उस वक्त बोल पड़ते हैं, ठीक है, अथॉरिटी फिगर्स के साथ कि भाई यहाँ मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, ये क्या हो रहा है, या फिर आप खुद पर उसको लेते हैं, मतलब उसे सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। अब आगे जो सप्रेस वाली मैंने वर्ड एक यूज किया उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सप्रेस एंगर जो होता है वो ये होता है कि आपके साथ एक बंदा बदतमीजी करके चला गया, ठीक है, आपके साथ एक बंदा झगड़ा करके चला गया, लेकिन आपको उस पर गुस्सा भी आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, आपका दिल चाह रहा है कि मैं इसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन आप जो है ना आप या फेयर की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, लेकिन मोस्टली इसमें फेयर आ जाता है, आप ना उससे बदला नहीं लेते, उससे कोई बात नहीं करते, आप ना वो अंदर ही अंदर अपने अंदर वो खुद उस एंगर को दबाते रहते हैं, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, ठीक है। इन इमोशंस को ना आप ऐसे समझो कि शो नहीं करते, आप उन इमोशंस को रिलीज नहीं करते, बल्कि उन इमोशंस को अपने अंदर दबाते रहते हैं, जो कि आगे आपके घुटन और कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बनती है, ठीक है। बेसिकली ये टाइप्स ऑफ एंगर है। अच्छा, मुझे बताते हैं आपको समझ आ रही है और आवाज आ रही है? यस, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम कुछ ट्रिगर्स देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीज आपको गुस्सा आता क्यों है, वजह इसके क्या बेसिक रीजन हो सकती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, इसे हम ट्रिगर्स कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर है, कोई भी ट्रिगर हो सकता है। इवन कि किसी को तो इस वजह से भी गुस्सा आ जाता है कि तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात ही क्यों की। तो लेकिन जो मेन फैक्टर है मैं उनको डिस्कस करूंगी। सिर्फ सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि जब अगर किसी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक घर में 2-4 कत्ल हो गए हैं या एक भी कत्ल हो गया लेकिन उसे इंसाफ ना मिले, ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा, आप सारा दिन से लाइन में लगे हुए हैं, आपके साथ एक बंदा आता है, वो 2 मिनट में अपना काम करवा के चला जाता है, आप सारा दिन के खड़े हुए देख रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी। तो जब आप इस तरह की नाइंसाफी को देखते हैं ना, फिर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इवन ना सिर्फ वो उस बंदे पे आता है जो अथॉरिटी फिगर है, बल्कि आपको पूरे सिस्टम पे आता है, इवन आपको पूरे कंट्री पे आने लग जाता है कि भाई मैं ऐसे मुल्क में हूँ जहाँ पे इतना नाइंसाफी है, ठीक है। नाइंसाफी सिर्फ सिस्टम या इसमें नहीं, बल्कि आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है, अगर आपके घर वाले एक बंदे को ज्यादा, एक फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, एक को ज्यादा प्यार दे रहे हैं और दूसरे को मुंह ही नहीं लगा रहे, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चा उस वक्त ना बहुत उसे गुस्सा आ रहा होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो बड़ा होके उसमें बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज और प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। तो ये इनजस्टिस है ना,
नाइंसाफी हो रही है किसी के साथ, तो नाइंसाफी जो होती है ना वो इंसान को जो है वो इस तरह के गुस्सा दिलाती है, ठीक है, और ये एक नेचुरल बात है। मायूसी में आपकी नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा होती है, ठीक है, आप मायूस हो रहे हैं, हमारे इस्लाम में मायूसी गुनाह है, वो इसलिए क्योंकि आप जब मायूस होते हो ना तो आपको ना जिंदगी अच्छी लग रही होती है, आप सारा नेगेटिव सोच रहे होते हो कि भाई नहीं, मैं तो इस दुनिया में आया जलीलो ख्वार होने के लिए हूँ। आपको खुद पे भी गुस्सा आ रहा होता है, आपको दूसरों पे भी गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है। तो मायूसी एक वो वाहिद सोर्स होता है जिसमें आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। इवन आप कामयाब हो भी गए हैं और अगर आप मायूसी में आ गए हैं ना, एक तो नॉर्मल होती है ना मायूसी, कभी कभी इंसान को हो जाती है, लेकिन एक जो हर वक्त आप मायूसी में आ गए तो वो आप कामयाब भी है तो नाकाम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मायूसी है, जब मायूसी में आप आते हैं तो आपको फिर खुद पे या दूसरों पे या अपनी प्रोडक्टिविटी पे, जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो अच्छे से नहीं हो रहा होता तो फिर आपको हर चीज पे गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आपके पर्सनल इश्यूज और स्ट्रेस। ये आजकल तो ये बहुत कॉमन है, पर्सनल इश्यूज और स्ट्रेस। आजकल हर किसी की पर्सनल लाइफ जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट में है, वो चाहे बताता नहीं है, ज्यादातर लोग नहीं बताते, लेकिन वो सफर कर रहे हैं। मसला कुछ और होता है अंदर, आपको गुस्सा किसी और पे आया होता है लेकिन आप निकालते किसी और पे हैं, ठीक है। किसी के घर में फॉर एग्जांपल पेरेंट्स से लड़ाई हो गई, ठीक है, या बहन भाइयों से लड़ाई हो गई, या स्कूल में अपने फ्रेंड्स से लड़ाई हो गई, या अपने किसी मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनसे लड़ाई हो गई, अपने अथॉरिटी फिगर से लड़ाई हो गई। तो ये जो आपके पर्सनल इश्यूज और ये जो आप स्ट्रेस लेते हैं, ये सब आपको ट्रिगर करते हैं एंगर की तरफ। ये अक्सर कहते हैं ना कि गुस्सा कहीं और का निकाल कहीं और रहा है। अथॉरिटी, आप किसी के अंडर काम कर रहे थे, गुस्सा उसका था लेकिन आपने निकाला अपने घर वालों पे, ठीक है। अगर घर वालों का गुस्सा था तो निकाला फ्रेंड्स पे, तो इस तरह का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्वायरमेंटल मतलब आप एक ऐसे इलाके में पैदा हो गए हैं जहां पे गुस्से के अलावा और किसी चीज से काम ही नहीं लिया जाता, ठीक है। और वहां पे ये है कि भाई आप छोटे होते हैं तो अपने माँ बाप को देखते हैं कि भाई वो गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, और आप भी वही सीखते हैं कि भाई गुस्से से इसे हम कहते हैं कि जी वो लोग भी कहते हैं कि गुस्सा हमारी नस्ल में है, ठीक है। और बचपन से लेके जवानी तक आपके इर्द गिर्द का माहौल ही, घर का और इलाके का माहौल ही ऐसा है कि आप जो है ना वो गुस्सा करने वाले लोगों को देखते हैं, इसलिए आप भी उस तरह हो जाते हैं, ठीक है, एटीट्यूड और गुस्से में। दूसरा ये होता है कि आपकी फ्रेंड कंपनी ऐसी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके घर वाले ऐसे नहीं है, आप किसी मतलब ऐसे शहर में भी नहीं रहते जहाँ पे जो गुस्से में के लिए और गरूर में मशहूर हो, आपकी वो नॉर्मल है, ठीक है। आपका दोस्तों का सर्कल ऐसा है कि जिन लोगों में आप बैठते हैं वो लोग ऐसे हैं जो आपको नेगेटिवली मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो गुस्से वाले हैं, ठीक है। वो आपको मतलब कहते हैं कि यार जाओ ना, इसको दो, इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, जाओ ना इसको दो चार लगाओ ताकि इसको सबक सिखाए कि आगे तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। वो आपको मोटिवेट करते हैं गुस्से की तरफ, ठीक है। तो ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है ना, ये आपको आपकी पर्सनैलिटी में चेंज करके रख देता है। आप एक अच्छे इंसान थे, अक्सर ये कंप्लेन आती है कि हमारा बच्चा जो है ना वो कुछ अरसा पहले तो बहुत अच्छा था, बहुत काम था, बहुत पीसफुल था, लेकिन अब जो है ना अब वो हर बात पे चिड़चिड़ा हो जाता है, तब बदतमीजी करने लगता है, गुस्सा हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि आपका जो वो जिसके साथ जिसकी कंपनी में आप रह रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपकी कोई ख्वाहिशात अधूरी रह जाती हैं तो भी आपको गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो डॉक्टर बनना चाहते थे, आपने बड़ी कोशिश की, डॉक्टर नहीं बन पाए, उसके बाद आपने मेहनत भी बहुत की, दो दो तीन तीन बार एमडी कैट भी दिया, लेकिन आप डॉक्टर नहीं बन पाए, तो फिर आपको खुद पे गुस्सा आ रहा होता है, या फिर आपको लगता है कि जी मेरी किस्मत ही खराब है, सही है। तो कभी आपको जी ये लगता है कि वो सिफारिश चली होगी इसलिए जी मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, ठीक है। कभी आपको सिस्टम पे गुस्सा आ रहा होता है, तो ये जो अनमिट एक्सपेक्टेशंस होती है ना आपकी, ये भी आपको गुस्सा दिलाती हैं, ठीक है। कुछ कुछ मेमोरीज आपकी लाइफ की ऐसी होती हैं, कोई पास्ट मेमोरी, मतलब किसी ने धोखा दे दिया,
फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है, उसकी दोस्त ने उसको धोखा दे दिया, तो वो कभी आगे वो उसने एक बात तैयार कर ली है कि मुझे आज इस धोखा मिला है, मैं जिंदगी में कभी दोस्त नहीं बनाऊंगी, तो वो हर वक्त सीरियस रहती है और वो किसी को इस काबिल समझती ही नहीं है कि कोई अच्छा भी होगा, बस वो ना इस रिजल्ट को सब पे जर्नलाइज कर देती है कि एक धोखा दे के गई है तो सब धोखा देंगी, तो इसलिए जो है ना वो मैंने दोस्ती किसी से करनी नहीं है। तो अगर कोई कुछ बात हो जाए ना, तो क्योंकि वो ऑलरेडी सीरियस मूड होती हैं, कोई बात हो जाए तो वो फट पड़ते हैं लोग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होते हैं जो कि मैंने अभी ये थोड़े से यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये भी हो सकता है कि किसी को कोई बीमारी हो, जैसे अल्लाह माफ करे कोई कैंसर की बीमारी हो गई है, तो कभी कभी वो लोग मायूस हो जाते हैं, यहाँ पे फिर मायूसी भी आ जाती है, ठीक है। वो मायूस होके खुद पे गुस्सा करने लगते हैं कि काश मैं पैदा ही ना हुई होती, और मायूस कौन बातें करने लग जाते हैं और खुद को मतलब कोसने लग जाते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा सर में दर्द हो जाए, तो अगर ये तो बड़ी कॉमन बात है ना, हम सब लोगों को अगर थोड़ा सा भी सर में दर्द हो जाए ना, तो भी हम बहुत ज्यादा मतलब चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई बात कर ले तो बस उसकी फिर खैर नहीं होती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद सिम्टम्स की अगर हम बात करें, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं कि आप सब लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही? आवाज आ रही है आप सब लोगों को? जी जी समझ आ रही है। चलें, ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ एंगर। एंगर की क्या सिम्टम हो सकती हैं? अच्छा जी, जब आपको गुस्सा आते है तो इसमें 3 चीजें हमारी इफेक्ट होती हैं, हो सकती हैं। एक तो आ जाता है हमारे पास फिजिकल सिम्टम, लेकिन फिजिकल सिम्टम से पहले इमोशनल और बिहेवियरल। चले पहले फिजिकल सिम्टम को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल सिम्टम क्या होते हैं? अगर जब आपको गुस्सा आ जाता है या गुस्सा आता है, एक तो आपके सर में बहुत दर्द होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ज्यादा गुस्सा करते हैं तो आपके फिजिकल सिम्टम क्या हो सकते हैं, ठीक है। एक सर में दर्द होता है, ठीक है। दूसरा, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो आपको डायरिया होगा या आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। आपको बीमारियां लगने लग जाएंगी। अब ये बीमारियां जो गुस्से के, देखिए जब ना गुस्सा ज्यादा हम करते हैं ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है, मुदाफती निजाम, ठीक है। आप सब लोगों को यहाँ पे जो बच्चे एफएससी वाले भी हैं, तो उनको आइडिया होगा इम्यून सिस्टम का, कि जो हमें ऐसे समझे बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, वो हमारा बहुत वीक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एंगर स्ट्रेस की वजह से भी होता है और ये स्ट्रेस क्रिएट भी करता है। तो ये जो चीजें होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत वीक कर देती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो इसीलिए हमें बीमारियां भी लगेंगी। अब ये इन्फेक्शियस बीमारियां भी हो सकती हैं, लेकिन मेन गुस्से की वजह से आपके दिमाग की रग भी फट सकती है उसी वक्त, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिनका अनकंट्रोलेबल गुस्सा होता है, ठीक है। दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन भी हो सकती है। कुछ कुछ लोगों को ना ये हो जाता है कि हाथ उनके कांप रहे होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त पूरी बॉडी शिवरिंग करती है और बाज़ औक़ात आईज से आंसू भी आने लग जाते हैं, और जैसे स्वेटिंग भी कुछ लोगों को होती है, हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। यस, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। ये वो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जो उस वक्त शो हो रहे होते हैं, ठीक है। फिजिकल सिम्टम बेसिकली वो के जो उस वक्त हमें दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये होता है बिहेवियरल एक्सप्रेशंस। आपके बिहेवियर में क्या होता है? अगर हम बिहेवियर की बात करें तो ज्यादा गुस्सा करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर मूडी होते हैं, ठीक है। उनके मूड स्विंग्स सेकंडों में होते हैं, ठीक है। कभी अच्छे मूड में होंगे तो अचानक से गुस्सा हो जाएंगे, सही है। और उसके बाद वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, सही है। उनको ज्यादा मतलब चीजें सुकून नहीं दे पा रही होती, कभी उधर बैठते हैं कभी उधर बैठते हैं। और जिनको एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा आता है, उनके लिए तो ये भी मुश्किल होता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। या तो वो कंट्रोल नहीं करते, अगर किसी की अक्ल में थोड़ा सा आ भी जाता है कि यार मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, तो वो उनके लिए ये चीज बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो और जैसे इकरा ने कहा कि हमारी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। अच्छा, इसकी मैं आपको रीजन बताऊंगी कि ये क्यों आने लग जाते हैं, सही है। और आपको ना ये मूड डिसऑर्डर, अगर हम बात करें ना थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वे में, आपको मूड डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये आपकी अभी सिम्टम्स थे। आगे बात करते हैं।
अच्छा सॉरी, मैंने इसमें इमोशनल रिस्पॉन्स का भी नहीं बताया आपको. इमोशनल रिस्पॉन्स में ये होता है कि आपका कंट्रोल खुद पर से चला जाता है और उसके बाद आप डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस, ठीक है, इसको भी सफर कर सकते हैं. और ये भी हो सकता है कि आपका जो बिहेवियर है ना, ये ना थोड़ा बिहेवियरल रिस्पॉन्स होगा कि आप गुस्से में आके या ज्यादा, क्योंकि आप मूड ऑफ रहते हैं ना आपका और आप बिल्कुल बेसुकून हो जाते हैं, इसलिए ना आप खुद को सुकून देना चाहते हैं तो आप ड्रग की तरफ भी जा सकते हैं. ठीक है, कुछ गलत एक्टिविटीज की तरफ भी जा सकते हैं कि आपको कहीं से सुकून मिले, क्योंकि आप बहुत बेसुकून होते हैं उस वक्त. ठीक है, तो इन सब चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है. फिर आप अच्छे से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, ये फिर हम आगे डिस्कस करेंगे. अच्छा, अब मैं ना आपको थोड़ा सा लिटरेचर एविडेंस दूंगी, ठीक है, जिसे हम थेरीज कहते हैं. कि भाई वो बेसिकली बेस होती है. कोई भी, अब जैसे गुस्सा है, अगर हम इस गुस्से को साइड पे कर लें, अगर हम मायूसी की बात कर लें या किसी रोने की बात कर लें या हैप्पीनेस की बात कर लें, तो कुछ हर ये जो चीजें होती है ना, ये किसी ना किसी बेस पे लाए कर रही होती है, मतलब इनकी कोई ना कोई बुनियाद होती है. इस तरीके से कुछ न्यूरोलॉजिस्ट, कुछ साइकोलॉजिस्ट, उन लोगों ने भी इसकी बुनियाद दी है, यानी थेरीज दी हैं. जैसे कि सोशल लर्निंग थ्योरी. सोशल लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि गुस्सा जो होता है ना, वो बाय बर्थ नहीं होता. मतलब जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा शुरू से ही पैदाइशी गुस्सा करता आ रहा है, नहीं. ये भी हो सकता है कि उसे इन्वायरमेंट ऐसा सिखा रहा हो. अब इन्वायरमेंट मैंने पहले कहा, दोस्तों का इन्वायरमेंट भी हो सकता है, वो जिस एरिया में रहते हैं, कोई उनका भी. वर्क प्लेस भी हो सकती है. यस, ऐसा ही है. थैंक यू. वर्क प्लेस का भी हो सकता है, इवन आपकी क्लासेस का भी हो सकता है. ठीक है, कोई भी. तो ये यहाँ पे सोशल मीन हियर सोसाइटी. ओके, योर सोशल रिलेशनशिप्स. सो हियर इज द मेन पॉइंट, सोशल रिलेशनशिप. सोशल लर्निंग मतलब आप लर्न ही सोसाइटी से एंगर को कर रहे हो, गुस्से को आप लर्न कर रहे हो सोसाइटी से, सोशल रिलेशनशिप से. अच्छा, उसके बाद है बायोलॉजिकल थ्योरी. अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि ये बायोलॉजिकल थ्योरी के, अब नाम से जाहिर है बायोलॉजिकल, इसका मतलब है हम थोड़ा मेडिकल में जाएंगे. हमारे जो दिमाग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जो कि हिप्पोकैम्पस हो गया या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, ये मेन वैसे ऑर्गन होते हैं, वो पार्ट्स ऑफ ब्रेन होते हैं जो कि हमारे एंगर को कंट्रोल करते हैं, हमारी इमोशनल प्रोसेस को, इमोशंस को प्रोसेस करते हैं. ठीक है, या फिर हमने अब एक बंदा हम पर गुस्सा हो रहा है, हमसे बदतमीजी कर रहा है. अब ये जो हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और उसके बाद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये पहले ना उनकी उन बातों को प्रोसेस करेंगे कि ये बातें हैं किस तरह की. ठीक है, उसके बाद वो हमारे अंदर ना एक इमोशन क्रिएट होगा. अब पहले हमारा दिमाग ये डिसाइड करता है कि ये बातें किस तरह की है, ये किस बदतमीजी के लेवल पे जा रहा है. कभी कभी तो देखिए, अब कभी कभी तो दोस्त भी ऐसी वैसी बातें कर लेते हैं ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल दोस्त कोई गाली देते तो ज्यादा असर नहीं करती कि भी मजाक में दे रही है या दोस्त है, लेकिन अगर वो गाली कोई और बंदा, कोई अननोन पर्सन दे दे, तो आप उस पर फट पड़ते हैं कि भी आप किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं और ये अभी आपने क्या कहा है. ठीक है, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना हमारा दिमाग प्रोसेस करता है कि बेसिकली यहाँ पे गुस्सा करना भी है या नहीं करना. तो वो प्रोसेस करता है कि मेरे सामने खड़ा बंदा कौन है और ये किस तरह की बातें कर रहा है, और उसके मुताबिक हमारा दिमाग वो इमोशन रेगुलेट करता है. ठीक है, अब ये जो मैंने 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन आपको बताए हैं, ये इमोशंस को रेगुलेट करते हैं. उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई आपको इसका रिस्पॉन्स क्या देना है. ठीक है, अब ये इन तीनों जो मैंने हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इन चीजों का मैंने आपको बताया है. अगर इनमें किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और इन तीनों में से कोई एक जो है ना वो खराब हो जाता है, इंपेयरमेंट आ जाती है, डैमेज हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो इन लोगों को गुस्सा बगैर किसी वजह के आता है. ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जैसे सेरोटोनिन या डोपामाइन, जो ये भी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारे मूड स्विंग्स में. ठीक है, तो ये सब कुछ होता है बायोलॉजिकल थ्योरी में. वो बेसिकली बायोलॉजी की बात करती है, केमिकल्स की बात करती है और पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात करती है विच आर रिस्पॉन्सिबल टू योर इमोशनल प्रोसेस. उसके बाद साइको एनालिटिकल थ्योरी होती है. अब क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करूंगी. ये जो थ्योरी होती है ना, मतलब कोई ऐसे बचपन के कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या ऐसे जो आपने अपने अंदर कुछ पाले हुए होते हैं,
اس کی وجہ سے آپ اس کا غصہ دوسروں پہ نکالتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ دوست نے دھوکہ دے دیا تو آپ نے پوری دنیا کو کہا کہ میں نے اب کسی کو دوست نہیں بنانا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے کانفلکٹ جو ہے نا وہ بھی آپ کو غصہ دلاتے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد یہ میں نے آگے ڈس ایڈوانٹیج کی بات کر رہی تھی, تو یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ غصے کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں, آپ کو ڈپریشن, انزائٹی, اسٹریس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بیماریاں لگتی ہیں, آپ اچھے سے اپنا پرفارم نہیں کر پاتے ہو, آپ اچھے سے کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے ہو. یہ بہت بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو مین ٹاپک تھا ہمارا کہ بھائی کسی ٹف سچویشن میں یا سڈن سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, مینج کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا فار ایگزامپل جنگ چھڑ گئی ہے یا آپ کسی بس میں ہیں, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو اب اس وقت آپ بچ گئے ہیں اللہ کے کرم سے, اگر آپ بچ جاتے ہیں تو آپ نے اس وقت کس طرح آپ کو مینج کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کام رہیں. ٹھیک ہے, مطلب دیکھیں کہ بھائی آپ خود کو ہوش میں لائیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا اب میرا کام کیا ہے, آپ اس کو پریورٹائز کریں. ٹھیک ہے, مین کام کو کہ ہیلپ کرنی ہے یا چیخنا چلانا ہے, ان دونوں میں سے کوئی آپ پریورٹائز کریں گے. اور اس وقت کیونکہ لوگ مایوسی کا وقت ہوتا ہے, جب بھی کوئی سڈن کوئی نیچرل ڈیزاسٹر بھی آ جاتا ہے تو ہر کوئی رو رہا ہوتا ہے. آپ نے اس وقت لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھائی اب یہ ایکشن کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو سپورٹ دیں. ٹھیک ہے, اور اس وقت آپ اپنا بھی خیال رکھیں. یہ پتہ چلے کہ آپ خود تو آپ کو اپنا ہوش نہیں ہے, کچھ بھی آ کے آپ کو نقصان دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اپنا بھی خیال رکھیں اور مینٹلی آپ ہر وقت تیار رہا کریں کسی بھی سچویشن کے لیے. دیٹس ویری امپورٹینٹ. ٹھیک ہے, تو اٹس مین کہ آپ اپنے ہوش میں آئیں پہلے, اور اس کے بعد اپنے دماغ سے کام لیں. یہ زیادہ امپورٹنٹ رہتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ فوراً ٹریگر ہو جائیں اور چیخیں مارنا شروع ہو جائیں. دیٹس ناٹ گڈ. ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں روڈز پہ کہ اگر بائک اور رکشے والے کی یا گاڑی اور رکشے والے کی آپس میں ٹکر ہو جائے تو وہ باہمی رضامندی سے بات چیت سے معاملہ سالو کر سکتے ہیں, لیکن وہ لوگ وہاں پہ ایک دوسرے پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی چیز ان جی لوگوں کو بھی ریئلائز کرنی چاہیے کہ ایسے ہاؤ ٹو تو کوپ وتھ اٹ. ہماری ڈیلی لائف میں جو ہے نا یہ پرابلم بہت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایموشنز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دماغ سے زیادہ ہم دل سے کام لیتے ہیں. ہم ایک دوسرے پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ پرابلم کا سولوشن ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کے اخلاقیات سے دور دور تک اس کا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ ہوش و حواس میں رہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ آپ سے بدتمیزی کر رہے تو ضروری آپ اس کے ساتھ بحث میں پڑیں. جسٹ اگنور. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم کچھ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں, جیسے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے نا, یا پھر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے گروپ میں جس سے مطلب آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, آپ کو غصہ آ رہا ہے, جسٹ اسٹیپ بیک, اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے. ٹھیک ہے, کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں. اٹس گڈ فار یو کہ آپ پورے گروپ سے لڑیں گے, آپ اس سے بحث کریں گے کہ نہیں بھائی آپ کا یہ پرسپیکٹو غلط ہے, میرا ٹھیک ہے. اس سے بہتر ہے آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ خود کو نا, اگر گھر میں غصہ آ گیا, ٹھیک ہے, گھر میں آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے, کنٹرول میں نہیں آ رہا, تو کوشش کریں وہ کام کریں جو آپ کو, جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ جو ہے نا شاور لے لیں نا, نہا لیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کوشش کریں آپ اندر جا کے پانی پی لیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کا غصہ ٹھنڈا کرے گا. اس کے بعد اگر آپ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں آپ کا انکنٹرولڈ, آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, تو کوشش کریں آپ اپنی مٹھی کو اسٹرانگلی بند کر دیں اور دوسرا ہاتھ جو ہے وہ آپ اپنے نیک میں ڈالیں اور اپنے نیک کو جو ہے وہ پیچھے سے اسٹرانگلی گرپ کر لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے ہماری نیک کی جہاں پہ ہمارے ایموشنز جو ہے نا ان کا ٹرانسفارمیشن بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور بلڈ فلو بھی بہت تیزی سے ہوتا ہے. تو وہاں پہ اگر آپ اس کو دباتے ہیں نا اسٹرانگلی, تو یہ بھی آپ کی ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈیپ بریتھنگ کر لیں, لمبا سانس لیں, تھوڑی اس جگہ سے ہٹ کے نا تھوڑا لمبا سانس لے لیں, تو یہ بھی آپ کی ایموشنل ریگولیشن کو کنٹرول کرے گا. صحیح ہے. اس کے بعد یہ ہے اگر آپ کو رونا, یس میم یہ جو ابھی آپ نے نیک والا بتایا ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. ہاں, ایک ہاتھ کو مضبوطی سے گرپ کر لیں. ٹھیک ہے, مطلب جیسے مضبوطی سے بند کر دیتے اپنی مٹھی, اور دوسرا ہاتھ نا اپنی گردن میں نا اسٹرانگلی اس گردن کو گرپ کریں, اور ایسے نا جیسے ہم دباتے نہیں اپنی گردن کو بار بار, اس طرح سے دبائیں. اس سے نا آپ کا غصہ جو ہے نا وہ کم ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ بلڈ فلو زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس لیے کیونکہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمارا بہت زیادہ بلڈ فلو ہو جاتا ہے, فاسٹ ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ وہ چیز نارمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا غصہ کم ہوگا.
समझ आई? और काइंडली ये बताइएगा कि कोई से भी हाथ की मुट्ठी हम लोग बंद कर हाँ, सकते हैं और कोई ऐसा से भी कोई हाथ, भी। या जरूरी है कि राइट वाला नो बंद होना चाहिए? नो, इट्स डिपेंड ऑन यू। अच्छा, जी उसके बाद क्या है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी करने, ज्यादातर लोग आपने ड्रामों में देखा होगा कि गुस्सा आ रहा होता है तो वो वहां से तो चले जाते हैं, कोई जिम में जाते हैं तो वो कोई पंचिंग बैग होता है उसको जोर जोर से मार रहे होते हैं। अगर ठीक है आपके पास, लड़कियों के पास तो वो भी अवेलेबल नहीं होता या लड़कों, तो जरूरी नहीं है। आप खामोश हो जाए, आप अपनी आंखें बंद करके खामोश हो जाएं, अपने आप को रिलैक्स करें और माइंडफुलनेस करें। मतलब क्या कि आप वहां से चले जाएं और अपनी क्योंकि इंसान के दिमाग में आ रहा होता है कि मैं इसको ये जवाब देता, ये जवाब देता। बेहतर है आप ना अपने ना किसी और एक्टिविटी में मसरूफ हो जाएं, या अपनी तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए आप ये चीजें नोट करें कि उसके इर्द गिर्द क्या है, कैसा माहौल है। ठीक है। और एक और बात, जरूरी नहीं है आप गुस्से का जवाब गुस्से से दें, कभी कभी रीजंस भी समझते हैं। अब अगला बंदा है मेडिकल इंजरी का है, उसको हर बात पे गुस्सा आता है और आप नॉर्मल बंदे हो, तो आप भी उसके साथ गुस्सा करने लग जाओ। सबसे मेन बात होती है आप गुस्से में रीजन भी समझे ना, कि मतलब कि वो तो मरीज है, मैं क्यों उसके साथ उसकी तरह हो रहा हूँ। सही है। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने गुस्से को, ये कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है। और हाँ, मसल रिलैक्सेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, जिसमें ये भी उसी में आती है जो मैंने आपको गर्दन वाली बताई, ये उसमें आती है। लेकिन मसल्स में आपके मसल को जो है ना वो आपने रिलैक्स करना होता है, थोड़ा मूव करना होता है। ठीक है। एक्सक्यूज मी फिर मैम, यस, मैम ये कहते हैं ना कि 12 मिनट तक कोई भी आपके इमोशन लास्ट करता है, मतलब अगर आप गुस्से में हैं तो वो भी आपको 12 मिनट तक ही आएगा, उसका आप एग्रेसिव मूड है तो हाँ, फिर जब ये हाँ, 12 मिनट्स के बाद खत्म हो जाते हैं तो फिर भी कभी कभी हमें फील हो तो रहा होता है हाँ, कि हम होता ही है। गुस्से में हैं। अब जैसे मैंने क्रोनिक की बात की, क्रोनिक एंगर की, वो बहुत लंबे अरसे तक रहता है, वो 12 मिनट तक खत्म नहीं होता। हो सकता है कि उस वक्त उसे 12 मिनट तक आ जाए, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसे एज अ पैसिव एंगर रख लेता है, फिर निकालता है, फिर निकालता है। लेकिन बात ये है कि 12 मिनट तक ना उसकी इंटेंसिटी रहती है, इंटेंसिटी। मतलब 12, वो कहने का मतलब है कि रिसर्चर्स ये कहते हैं कि 12 मिनट तक वो लड़ेगा, मारेगा, ये करेगा, लेकिन उसके बाद वो लड़ना छोड़ देगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसका गुस्सा ठंडा हो गया, ये भी हो सकता है कि वो अंदर जो है ना अपना बदले के तौर पे रख ले कि आज पॉइजन इससे, ट्री बना रहा होता है। हाँ ऐसा ही है। अच्छा, आते हैं कि भाई इनके साथ कोऑपरेट करो, इनके साथ हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा नहीं करना। ठीक है। तो इन सब चीजों की तरफ हम जाते हैं, थेरेपीज की तरफ जाते हैं, अगर वो हमसे सेशन लेने आते हैं। सही है। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछिए। आई हैव अ क्वेश्चन। यस। ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है एंगर को कोप करने में कि जैसे आपने बताया जैसे मसल्स वाली जो एक्टिविटी थी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है जैसे हम अपनी पूरी बॉडी को लूज छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें, एक बेड पे लेट जाए, बाजुओं को भी छोड़ दें, हेड को भी मूवमेंट बिना, बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाए, जैसे अपनी बॉडी को लूज छोड़ दिया जाता है, यस, तो क्या उससे भी एंगर कम हो सकता है? यस हो सकता है। और अगर आपको, वैसे तो आपने कहा था कि आपको गुस्से के वक्त आंखों से आंसू आते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं आते, उस वक्त नहीं आ रहे होते। ठीक है। तो कोशिश करें, अगर कुछ लोगों को ये आंसू, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको इसका जवाब देना है। आंसू इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि उस वक्त ना हमारे इमोशंस ऑन द पीक होते हैं। ठीक है। और कहीं से हमारा ब्रेन चाहता है कि ये इमोशन रेगुलेट हो जाए, सिस्टम, दिमाग बेसिकली ना हमारे पूरे जिस्म का सिस्टम कंट्रोल में लाना चाह रहा है। ठीक है। तो वो आपकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। लेकिन वो लोग जिनको नहीं आते आंखों से आंसू, तो कोशिश करें अकेले बैठ के ना थोड़ा रो लें। ठीक है। ये ज्यादा जरूरी है कि आपके इमोशंस रिलीज हों, क्योंकि आपके इमोशंस अगर रिलीज नहीं होते, फिर वो आके आपके लिए मसला क्रिएट करते हैं, फिर वो आपके लिए घुटन भी क्रिएट करते हैं, फिर वो आपके लिए चिड़चिड़ापन, बेसुकूनी, ये सब कुछ क्रिएट करते हैं। तो बेहतर है जो आपने तरीका बताया कि भाई मेरा फॉर एग्जाम्पल आपका गुस्सा अगर ऐसे कंट्रोल हो सकता होता है कि आप अपनी बॉडी को लूज छोड़ दे, बिल्कुल लूज, और लंबा सांस ले, तो आपका गुस्सा कंट्रोल हो सकता है। ओके, इट मीन्स के जो आंसू आते हैं वो नॉर्मल है, वो अच्छे हैं, अगर आ जी, जाए तो इससे हमारा गुस्सा कम हो जाएगा। आंसू से ये, अच्छा, ये लड़कों में हमारे बड़ी मिथ है कि लड़के रोते नहीं है, और भाई वो भी इंसान है, ये हमारा कल्चर ने ये स्टैंडर्ड क्रिएट किया है, बट बाय द नेचर ये स्टैंडर्ड नहीं है।
لڑکے بھی روتے ہیں, ان کے بھی لیے, اس لیے تو وہ روتے نہیں ہیں نا, اس لیے وہ بہت زیادہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سخت دل, سیریس موڈ اس طرح سے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے مائنڈ میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ تم لڑکے ہو, تم نے رونا نہیں ہے. ان کا اگریسو پوائنٹ زیادہ ہو جاتا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ روتے نہیں ہیں, ان کے ایموشنز ہی ریلیز نہیں ہوتے, وہ اندر ہی اندر پالتے رہتے ہیں, اور گھٹن بھی ان کو زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن کیا ہے کہ جی میل ہے, میل تو اسٹرانگ ہوتے ہیں, تو ضروری ہے کہ یہ آنسو جو ہوتے ہیں نا, سیڈنس, ہیپینس کے, خوشی میں بھی آپ کو آنسو آ جاتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہمارے خوشی کا ایموشن آن دا پیک ہوتا ہے, اور ہمیں ہمارا دماغ چاہتا ہے کہ تھرو ٹیئرز اس کو اسٹیبلائز کیا جا سکے. صحیح ہے, تو جو ٹیئرز ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, تو اگر آ جائیں تو یہ کوئی آپ کی کمزوری کی نشانی نہیں ہوتی, بلکہ یہ آپ کی سسٹم اسٹیبلائزیشن کی نشانی ہوتی ہے. اور کوئی کوشچن؟